Hello students, good morning all of you. Today we are going to talk about the new chapter, that is blood circulatory system of human. Let's start. Introduction. Circulatory system is a system of organs which responsible for the circulation and transport of oxygen, CO2, glucose, amino acids, hormones, electrolytes like sodium ions, potassium ions, calcium ions and chloride ions, and other nutrients throughout the body. मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी का ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ऑर्गन्स सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट का वर्क कर रहे हैं. ऑक्सीजन गैस, CO2, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स, आयंस एंड अदर न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी से ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते हैं, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, लिम्फ एंड लिम्फेटिक वेसल्स. सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेजर ऑर्गन होता है वो हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड है, लिम्फ है और लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं. ये सब मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं. हाउ टू डिफाइन इट? द सिस्टम बाय विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज सर्कुलेट द फूड मटेरियल्स एंड रिलीज वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम ए सेल इज नॉन एज सर्कुलेटरी सिस्टम. ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू अपन गैसेस का एक्सचेंज और फूड मटेरियल का सर्कुलेशन और जिसके ड्यूरिंग वेस्ट मटेरियल जो रिलीज होते हैं उनको बॉडी सेल से एक्सक्रीट करवाते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम. स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉन एज एंजियोलॉजी. हु इज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी? विलियम हार्वे. Study of heart is known as cardiology. Study of blood is known as hematology. Study of blood pressure is known as sphygmomology. Study of blood pressure is known as sphygmology. How many types of circulatory system? There are two types. First is open circulatory system and second closed circulatory system. In open circulatory system, liquid or blood flows between cells and tissue. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का फ्लो सेल्स और टिश्यू के बीच में होता है, मीन्स डू नॉट फ्लो इन क्लोज्ड ब्लड वेसल्स. फॉर एग्जाम्पल, some molluscus, arthropoda phylum members and echinodermata phylum members have open circulatory system. Second, closed circulatory system. In closed circulatory system, the blood flows within closed blood vessels. ब्लड का फ्लो क्लोज ब्लड वेसल्स के अंदर होता है. फॉर एग्जाम्पल, एनिलिडा फाइलम, सम मोलस्कस, ओनली सिफिलोपोडा and higher chordates, rabbit and human beings. Next topic, blood. Blood is a special fluid connective tissue which circulate in the body. Blood एक special connective tissue होता है जो बॉडी में circulate होता है. The amount of blood in a healthy human being is 5 to 5.5 liter. It is originated from mesoderm germ layer. ब्लड का ओरिजिन mesoderm germ layer से होता है. It is slightly alkaline and average pH is 7.4. ब्लड की नेचर एल्कलाइन होती है, मीन्स 7.4 इसकी pH है. pH of the blood is maintained by bicarbonate ions SO3-, जो ब्लड की pH को मेंटेन करते हैं. Next, composition of blood. Blood has two major components. First, plasma and second, blood corpuscles. Plasma is the liquid part
of blood and it have 55% of total blood volume, and blood corpuscles are solid particles of blood. Firstly, we talk about the first part, plasma. The fluid part of blood is called plasma. It is composed of 90 to 92% water and 8 to 10% solid part. मीन्स प्लाज्मा होता है वो 90% वाटर से बनता है और 8% सॉलिड पार्ट से बनता है. तो अपन पहले प्लाज्मा का कंपोजिशन देखेंगे. Plasma has following components. First, inorganic components, which is 0.9%. In inorganic components, first, ions like potassium, sodium, calcium, chloride, bicarbonate, phosphate and sulfate. Salts, sodium chloride, potassium chloride, sodium bicarbonate, potassium bicarbonate. But NaCl is common salt of blood. Inorganic components 0.9% होता है, 8% का. इसमें आयन, सॉल्ट एंड गैसेज होती है. गैसेज में CO2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है. बट सॉल्ट्स के अंदर जो सोडियम क्लोराइड है वो कॉमन सॉल्ट है. ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स विच इज 7 to 9%. In organic components, first protein, which is 6 to 7% of organic components of plasma. Blood proteins are classified into 3 categories. First, albumin, second, globulin, and third, prothrombin and fibrinogen. Albumin protein consists 4% of total organic components. It is smallest blood protein. Globulin, it is 2 to 2.5%, and it is of 3 types. Globulin protein 3 type की होती है: alpha globulin, beta globulin and gamma globulin. Alpha globulin protein are synthesized in liver and secreted by liver. Function is transport of copper ions. Alpha globulin protein का सिंथेसिस एंड सिक्रेशन लीवर के थ्रू होता है और इसका जो फंक्शन है ये कॉपर आयंस का ट्रांसपोर्ट करती है. बीटा ग्लोबुलिन जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, इट ऑल्सो सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय लीवर. इसका सिंथेसिस भी लीवर करता है और सिक्रेशन भी लीवर के थ्रू होता है. फंक्शन, इट ट्रांसपोर्ट फेरस आयंस. ये फेरस आयन का ट्रांसपोर्ट करती है. हीमोग्लोबिन जो क्वार्टरनी प्रोटीन है वो बीटा ग्लोबुलिन से ही बनती है. गामा ग्लोबुलिन इट सिक्रेटेड बाय लिम्फोइड ऑर्गन्स. जो लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है, जैसे अपना सर्कुलेटरी सिस्टम ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वैसे ही लिम्फिक है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है. कलरलेस फ्लूइड होता है, ऑल्सो नॉन एज इम्यूनोग्लोबिन. इसका सिक्रेशन लिम्फोइड ऑर्गन्स करते हैं लाइक स्प्लीन. और गामा ग्लोबिन IG इम्यूनोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है. इट इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज. अपनी एंटीबॉडी IG होती है और एंटीबॉडी प्रोटीन है, इसमें गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है जिसको अपन वाई शेप की बताते हैं. थर्ड, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन. दे आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर. मीन्स ग्लोबुलिन के 3 पार्ट्स एल्फा, बीटा, गामा एंड प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन. इन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन लीवर ऑर्गन में होता है. दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन दोनों ही वाटर सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन है और इनका फंक्शन होता है ब्लड की क्लॉटिंग करवाना, ब्लड कोगुलेशन करवाना. फाइब्रिनोजन इज लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन एंड एल्ब्यूमिन इज द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन. ये थे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स.
अब बात करते हैं अपन डाइजेस्टेड फूड। प्लाज्मा में और क्या क्या होता है। डाइजेस्टेड फूड फॉर्म ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए आरएनए का पार्ट होता है, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोरस एंड लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स होती है, एंड विटामिन, ये प्लाज्मा में सोल्यूबल फॉर्म है सब। एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन सब्सटेंस, ये सब एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है जो अपनी बॉडी में बनते हैं और बॉडी को इनसे एक्सक्रीट करवाते हैं। एंटीकोगुलेंट्स, प्लाज्मा में एक एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट होता है जिसका नेम है हिपेरिन, प्रोटीन हिपेरिन सब्सटेंस। हिपेरिन इज ए हेटेरोपॉलीसेकेराइड, ये ना तो पूरा कंप्लीटली प्रोटीन है ना ही कार्बोहाइड्रेट है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड मीन्स कॉन्जुगेटेड पॉलीसेकेराइड है, ये कार्बोहाइड्रेट की हेटेरो फॉर्म है जो ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। इसी वजह से ब्लड है वो अपनी बॉडी में लिक्विड फॉर्म में फ्लो रहता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती ब्लड वेसल्स में। नेक्स्ट हॉर्मोन्स, दे आर प्रेजेंट एज सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हॉर्मोन्स का सिक्रेशन एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है जिनको अपन केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। ये केमिकल मैसेंजर एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होकर ब्लड के प्लाज्मा में आ जाते हैं और जैसे ब्लड सर्कुलेट होता है टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। डिफेंस मटेरियल, इट कंटेन लाइसोजाइम एंजाइम एंड प्रोटीन विच आर जर्मिसाइडल। डिफेंस मटेरियल फॉर्म में लाइसोजाइम एंजाइम होता है ब्लड प्लाज्मा के पास एंड प्रोटीन होती है। ये दोनों क्या है, जर्मिसाइडल मीन्स जर्म्स को किल करते हैं। लाइसोजाइम का आपको पता ही है, ये बैक्टीरिया को किल कर सकता है। वैसे प्रोटीन भी है, वो भी इसी नेचर की है, कोई भी जब पैथोजन आएगा उसको किल कर देंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ ब्लड corpuscles, they are present as floating particle in blood plasma, ये ब्लड प्लाज्मा में फ्लोट करती है। दे आर 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। प्लाज्मा था 55% और ये होती है 45%, 100% बन रहा है। द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज और ब्लड कॉर्पसेल्स आर नोन एज हिमेटोक्रीट वॉल्यूम। एक डेफिनेशन है जिसमें ब्लड कॉर्पसेल्स की परसेंटेज वॉल्यूम डिराइव की जाती है जिसको बोलते हैं हिमेटोक्रीट वॉल्यूम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी इज रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी white blood corpuscles, RBCs are further not divided but WBCs have parts, first granulocyte, second agranulocytes. ग्रेनुलोसाइट मीन्स जब WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है तो ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स 65% होती है, एग्नोसाइट्स 35% होती है। फर्दर ग्रेनुलोसाइट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स मीन्स न्यूट्रल पीएच, ये एसिडिक एंड बेसिक बहुत डाइसिस्टेन हो सकता है और ग्रेनुलोसाइट का 62% पार्ट होता है। इओसिनोफिल्स ये ओनली इओसिन डाइसिस्टेन होता है और 2.5% होता है ग्रेनुलोसाइट का। बेसोफिल्स ये बेसिक डाइसिस्टेन होता है, 0.5% पार्ट होता है। एग्नोसाइट जो 35% है फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट 5% पार्ट होता है, लिम्फोसाइट 30% पार्ट होता है।